Greetings, friends. I am Sayyid Musab Rahim Hashmi, advocate, and with me today we have Muhammad Abdul Muhib, advocate, and other advocates and law students. So, this is the question and answer session being followed after the discussion about today's argument, which Abdul Muhib, advocate, had, and a very spectacular victory. Was there. So people had few questions. The first one पहला वाला मेरा सवाल था टाइम के बारे में जो आंसर पार्ट वन में है. देन फॉलोड बाय सिस्टर जोहरा फातिमा एडवोकेट. आपका सवाल चल रहा था, तो सवाल रिपीट करने को बोलेंगे या आप अगर चाहे तो आंसर. अपने व्यूअर्स के लिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो डायरेक्टली सेकंड वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए सवाल रिपीट कर दिए तो बेहतर है। सिस्टर जोहरा। ओके, वो बिजी दिख रहे. किसी और के पास कुछ सवाल है? सैयद अशरफ या मोहम्मद सईद? या मैं खुद रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। हाँ, बेटर. ये जो क्वेश्चन था सिस्टर का, ये था कि अपन कोई जमीन खरीद लेते, तो क्या वो जो जमीन जो डिमार्केशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सो जब आप जमीन खरीदते एज ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, तो डिमार्केशन है, ना ही वो वेंडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना वेंडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिमार्केशन ऑफ लैंड इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द स्टेट, और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। अगर आप कोई गांव में गए या कोई डिस्ट्रिक्ट में गए, हु इज द हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से? वन इज द वेरी टॉप echelons. Who comes at the top? There is a district collector. There is a district collector. Then there is an MRO. And what is the process is that MRO sends reports. जो भी सेल हो गया लैंड, जो भी पार्सल ऑफ लैंड, जितना भी एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, तो MRO will send report to the district collector. Then all these reports are forwarded to Department of Economics and Statistics and Planning Department. कि भाई इतना सेल हो गया, इतना पार्सल ऑफ लैंड है, उसमें से इतना पार्सल ऑफ लैंड प्राइवेट पार्ट में चले गया, प्राइवेट वेंडर्स खरीद लिए और they have distributed it. Then there is a public land. So there will be demarcation of public lands as well as the private land. और जो भी private lands है, the private lands are again two types. One is agricultural land and one is non-agricultural land. तो agricultural land के अलग रूल्स है एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के अलग रूल्स है. सो अपने जो स्पेसिफिक केस है, दैट वाज द एग्रीकल्चरल लैंड in a particular place, a particular district. So when MRO send report to the district collector send reports to Department of Economics and Statistics and Planning Department at a government level, top government level. And then अभी तक तो फाइल्स ट्रांसफर हो रहे थे खाली, नेक्स्ट अब ग्राउंड पे काम हो. एंड कोई भी आज अगर आपको if for a person from being a construction background, I have been into the surveying part. So that order, the instructions are sent to the mandal surveyor to go to the particular piece of land and demarcate, yeah, which land is what, कितना size है, such that peaceful title के साथ possession भी मिल जाए, जो भी who is the rightful owner. So the mandal surveyor comes under the survey department and land records department, and this mandal surveyor assists MRO. Remember पहले कहां से स्टार्ट कर रहे थे? MRO डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट सेंड करता, then the district collector send reports to Department of Economics and Statistics and Planning at government level. Then the instructions are given to the mandal surveyor. Mandal surveyor goes to the place where the demarcation has to be done, and then he assists the MRO in demarcation. So ये पूरा साइकिल है. तो कभी कभी क्या होता, इट इज अगर सेंडर है, अगर वेंडर है, समटाइम्स विद म्यूचुअल एग्रीमेंट वेंडर इज सो गुड कि भाई आपको सब करके देता हूं. द वेंडर सेज कि भाई मैंने मेरे को बेचने से पहले मेरी जमीन है, आई हैव परचेज्ड इट, सो आई वुड नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू द वेंडीज.
to persons who have sold the land, and he will recover the money. But some vendors, what they do, they sell the land and leave it to the government or to the vendi. ये भाई अगर आप जाओ जाके आप petition डाल लो, if your किस्मत अच्छी है तो डिमार्केट हो जाता। अगर आप 100 एकड़ में से 0.1 एकड़ खरीदे तो वो छोटी होती 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 कितनी हो जाती, 0.1 हो जाती। सो एट दैट पॉइंट ये डिफिकल्ट हो जाता कि भाई पहले तो जमीन छोटी है, द पार्सल ऑफ लैंड इज वेरी स्मॉल, एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एंक्रोचमेंट। उन्हें इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा, चार साइड से एक रोड आ गई तो जो जमीन है वो भी चले जाती। सो an advice to all the viewers who are watching this, make sure that the demarcation is done. डिमार्केशन जिसको है आप वही प्लॉट्स खरीदिए, और नहीं भी है तो आप लीगल हेल्प लेके या वेंडर से म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ डिमार्केट करी हुई जमीन खरीदिए। इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज मनी इन द फ्यूचर, बिकॉज एक बार अगर आपकी जमीन लिटिगेशन में गई, you will be in litigation for almost decades. आप सबसे छोटे से छोटे कोर्ट को जाके सिविल कोर्ट को जाके आप सुप्रीम कोर्ट, you will end up your case and you will get a judgment. You will get a judgment whether your case will be dismissed or the case will be disposed. So this was the answer to Sister Zohra's question. What responsibilities क्या क्या है सर्वे का? So any other question from participants? जनाब मोहम्मद सईद, सैयद अशरफ हुसैन, सिस्टर कौसर तस्नीम, तीनों में से किसी के पास कुछ सवाल है अगर आज के आर्ग्यूमेंट के बारे में तो कर सकते, अदरवाइज we'll close. Sir, as you mentioned, you filed a writ petition, right? जी, So I want to know, sir, which type of writ petition you filed? देखिए रिट पिटीशन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में गए आप, तो रिट पिटीशन इज गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप आर्टिकल नंबर 32 यूज कर रहे, if you are invoking article number 32, then you are directly approaching the Supreme Court. But the very first thing, you have to invoke article number 226 at the state level. और एक चीज याद रखिए, we have invoked the article 226, the mandamus, giving instructions to the government authorities to do their work. अगर government authorities if they would have been alert, we would have never gone to file the writ petition or anything else. So 226 article number 226 of the Constitution of India, mandamus. One thing, जब आप writ petition फाइल करते, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में करते, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में करते। एक बहुत ही सटल डिफरेंस है, जब आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सिर्फ आपका दायरा जो स्कोप है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे रहेगा, आर्टिकल नंबर 14 to 28। लेकिन जब आप एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डालेंगे तो हाई कोर्ट का दायरा फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स। जो जमीन का मसला है, इट इज द लीगल राइट। आपको अगर इफ यू हैव स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पहले अपने पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, बट ड्यूरिंग द 1970s by 44th Constitutional Amendment Act, right to property was removed from the fundamental rights chapter and made into a legal right under article 300 capital A. तो आप जब आंसर भी लिख रहे हैं अपने एग्जाम्स में या किसी को समझा रहे आप, तो ये देखना है कि आर्टिकल 32 जब इस्तेमाल करते उसका दायरा सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही रहता। दैट इज आर्टिकल 14, आर्टिकल नंबर 14 to 28, ब्रॉडली 12 to 35। अगर बट आप जब आर्टिकल 226 में जा रहे अंडर हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट हाई कोर्ट, तो उसका दायरा नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो लीगल राइट। एग्जांपल आर्टिकल 300 कैपिटल ए, राइट टू प्रॉपर्टी। तो
This was, I hope I have cleared your question. I have given the answer for your question. Writ of Thank you, sir. mandamus, instructing the government official to perform their duties. जैसे अपन भी है घर में काम नहीं करते, अपने पास भी mandamus आता फिर. We have siblings. Then our siblings go to our parents. They file a writ petition. देखो भैया ये कर रहे हैं, देखो भैया वो कर रहे हैं बोल के. फिर एक ऑर्डर इशू होता, फिर अपन काम स्टार्ट करते. So this was a mandamus writ under Article 226. किसी और का Next question. अगर सवाल है, सैयद अशरफ, सिस्टर जोहरा, सिस्टर कौसर, सिस्टर शगुफ्ता, अगर कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो फिर विल कंक्लूड. So Shagufta, Sadaf, Kausar Tasneem, if you have any question, Sayyid Ashraf has asked, Zohra has asked, Saeed. So अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मेरे पास थोड़े 3-4 पॉइंट हैं तो मैं आप लोगों को, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, जैसा आप स्टूडेंट है या प्रैक्टिस कर रहे, तो व्हेनेवर जब आप रिपीटिशन डाल रहे, आपके पास एक एफिडेविट आपके हाथ में रहता, यू विल बी हैविंग होल्डिंग एन एफिडेविट, उसमें यू विल हैव ए नंबर ऑफ पैराग्राफ्स. आप लोग क्या करना, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द कोर्ट, वो पैराग्राफ में से कीवर्ड्स आप उठा लेना. व्हाट आई डिड, आई हैड 7 पैराग्राफ्स telling all my pleadings कि भाई ये at this point I made a sale deed and this so and so date, and हर पैराग्राफ में से एक कीवर्ड्स ले लें. बिकॉज कीवर्ड्स अगर आप एक पेपर पे लिख लिए, बिकॉज डॉकेट ऐसा रहता, द डॉकेट विल बी लाइक दिस. इफ यू हैव अ कीवर्ड्स यू कैन होल्ड इट एंड कीवर्ड्स लिख के वो पैराग्राफ का एक इंडेक्स रहता रीड पिटीशन. तो जैसा आप क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं. आप कम टू पेज नंबर 7, पैराग्राफ में से पूछते, अगर पैराग्राफ के कीवर्ड्स याद है आपको तो बहुत आसान. और स्पेशली थोड़ी चीज आप नोट डाउन करके रखना. इट शुड बी एट फिंगर, इट शुड बी एट टिप्स ऑफ योर टंग. सर्वे नंबर 1 इज सर्वे नंबर, पट्टादार पासबुक नंबर, खाता नंबर बोलते. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो तेलुगु. నీకు తెలుగు రావాలి, లేకపోతే అర్థం కాదు. some they might use Telugu also, because when you see the village records, they all will in Telugu and you have to translate it again. तो आपको तेलुगु आना है, तेलुगु आए तो आपको एक एडेड एडवांटेज है. आपको अगर बात भी नहीं करने आया तो जिसको बात भी करने आता तो बहुत बेहतर है. जिसको बात करने नहीं आता लेकिन समझ में आता, आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी, यू विल सॉल्व योर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स. कि सामने वाला समझता है कि भाई आपको तेलुगु नहीं आती, बेटा आप सब समझ रहे हो. तो इट विल सेव योर टाइम and you will be good in planning what the other person is thinking. So always anticipate the questions that might come from the judgment, might come from the judge, and judge will ask the questions only what you have mentioned in your paragraph. It's like open book exam viva. कभी कभी viva के दूसरे क्वेश्चन भी आ जाते आउट ऑफ सिलेबस बोल के, but 99% of the question will be come from the paragraphs you have mentioned. आप लोग पढ़ लेके जाइए, कीवर्ड्स रहते वही पूछते. Otherwise, some judges might help you, or some judges might give you another date or insult you in the whole court hall. उससे कॉन्फिडेंस डाउन होता. अच्छा प्रिपेयर करके जाइए. इट्स लाइक ए वाइवा एग्जाम. Instead of you are putting the arguments there. So this was some of my points which I tried. And one more thing, जब आप रेट पिटीशन डाल रहे तो साइटेशंस बराबर रखिए. साइटेशंस आपको याद रहना. रिट पिटीशन डालते फिर रिट अपील भी आती. माने there is a concept called stare decisis. Stare decisis किसी को आइडिया है? What is stare decisis? Principle of stare decisis. previous presidents. Previous precedents. मतलब Presidents. कोई भी जज अगर सिमिलर केस है
he will never turn the previous judgments unless there is drastic change of facts and circumstances. Yes. So one of the major factor of you winning the case on the very first day, very first session, is what precedents you give. Try to give the latest precedents Mhm. and be very sure of what the precedent. Luckily, I was not asked, but I was prepared. One was the case of 2013 that was overturned in 2023 by the Telangana High Court itself. A single judgment was overturned by a division bench by the current Chief Justice of Telangana High Court. So he saw that precedent and he had no other questions. I was prepared for answering that questions also. क्या बेंच थी, what was the respondent, कुछ भी पूछ सकता है. तो आप अपने एफिडेविट में क्या लिख रहे, विथ कीवर्ड याद रहना, और आप प्रेसिडेंट्स क्या दे. अब प्रेसिडेंट्स नहीं दे, अब आप केस नहीं जीत सकते. सही प्रेसिडेंट दिए तो पहली केस, अब यू माइट आस्क कि भाई सर पहले दिन में कैसा आ गया, ये तो किस्मत है बोलते, लक बाई चांस. पहले दिन में आप आ गया डिस्पोज. लेकिन हम तो सुने थे 20 साल चलता केस, 3 महीने का डेट आती, वैसा कुछ नहीं. वो कहावत है ना कि द गुड लक फेवर्स दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड. वेल प्रिपेयर्ड, लक फेवर द ब्रेव. अब जाके ठहरना इंपॉर्टेंट है, उधर जाके ठहरना, जाके आप बात करना. Luckily, I am in teaching for almost 10 to 12 years now. I am doing this day and day night, 24/7. कभी खड़े गए, कभी बैठ. I am taking the classes. I don't. एक स्टेज फियर है, वो चले गया मैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्रेश एडवोकेट, I would never use the word junior advocate, but I would use the word fresh advocates. The junior advocate was extra statutory. There is no mention of junior in our Advocates Act. तो फ्रेश एडवोकेट जो भी है, फियर फैक्टर रहता, नॉलेज की कोई कमी नहीं रहती, बट सिर्फ और सिर्फ फियर फैक्टर रहता. और फियर कैसा जाता, व्हेन यू नो योर केस. व्हेन यू नो योर केस, द फियर विल नॉट ट्रबल यू इन वॉट एवर मैनर. लेकिन आप अपना केस मालूम रहना, बुक उठाना. सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई नहीं होती, सॉफ्ट कॉपी से आपका प्रिपरेशन नहीं होता. 99.99%. आप डिजिटल इंडिया में हैं तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लेंगे. बोलो प्लीज टेक ए हार्ड कॉपी ऑफ योर केस फाइल, रीड इट थ्रू आउट. चप्पा चप्पा मालूम रहना आपको, उसमें कौन से पेज पे, कौन से वर्ड में, कौन से पेज नंबर पे, कौन से लाइन में क्या दिया हुआ. देन 19.99% आप केस पहली हियरिंग में फर्स्ट आपको डिस्पोजल आएंगे, यू विल विन द केस. दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ टुडेस arguments. It might not be true for everything, but luckily we have won the case on the first hearing. So yeah, which I thought would be beneficial for all the students, all the practicing advocates, to take care when they are going to the argument in any court. The method is same. The well prepared you are, the more the chances that you are winning the case. So this was my short explanation. Some points you have to remember while you are preparing for any argument. तो आप इन शॉर्ट रिफ्रेश करने के लिए ऐसा कुछ आप बोल रहे थे अब्दुल मुहिब भाई के जो केस की फाइल है वो उसके अंदर ही आपको जज साहब सवाल करेंगे, उसके अलावा के सवालात के बारे में फियर फैक्टर रखने की जरूरत नहीं है नए एडवोकेट्स को. बस जो आपकी केस फाइल है उसमें क्या चीज कहाँ लिखी हुई है और डिटेल्स क्या है उसको अच्छा ग्रिप में रखेंगे, वाकिफ रखेंगे तो जीतने के इम्कान ज्यादा रहेंगे. और दूसरा स्टेज फियर है, और स्टेज फियर के लिए मैं ये एडवाइस देता हूँ साथियों को कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मूट कोर्ट्स में हिस्सा लीजिए जिसमें आपको सैंपल केसेस दिए जाते हैं और आपको रिप्रेजेंट करना रहता, 2-4 लोगों के सामने बोलिए. और अगर आप मीडिया में, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे आने में बुराई नहीं महसूस करते तो अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, वकालत की पढ़ाई के बारे में कुछ चीजें एक्सप्लेन करिए, तो यू विल गेट टू नो हाउ टू स्पीक. इट इज लाइक साइकिलिंग और स्विमिंग और एक्सरसाइजिंग और रनिंग.
इट्स लाइक डूइंग एनी टास्क, आप करते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे तो आपको बोलने की आदत रहेगी, फिर जज साहब के सामने भी आप बेहतर बोल सकेंगे, क्योंकि वकालत में सोच के प्लान करके एक एक्शन प्लान बना के ड्राफ्ट करके फिर ओरली आप कन्वे कर सकना, दैट्स द लास्ट स्टेप। आप बहुत अच्छा प्लान करें, आप ड्राफ्टिंग बहुत बेहतरीन करें, आप केसेस भी अच्छे कोट कर रहे हैं पुराने, बट जब जज साहब के सामने आप बोलने की बारी आ रही तो फियर फैक्टर हो जा रहा, स्टेज फियर हो रहा, हैबत हो रही, तो फिर सक्सेसफुल एडवोकेट बनने में थोड़ा अड़चन आ सकती। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग कॉलेजेस वगैरह में जनरली ओरल बात करने के लिए लोगों को उतना इनकरेज नहीं किया जाता, ज्यादा बुकिश नॉलेज पे, राइटिंग पे, मेमोराइजिंग द आंसर्स पे तवज्जो रहती। तो उस वजह से वकील बनने के टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा ओरल कम्युनिकेशन, स्टेज फियर के ऊपर तवज्जो दीजिए। बाकी की चीजें तो आपको रूल्स एंड लॉज एंड जो भी चेंज होते रहेंगे, आपके टीचर्स हैं कॉलेज में, दे विल टीच यू द knowledge of laws and rules and sections, but become a good speaker also, which you can do only by speaking. ओके, थैंक यू। सब लोग अपना कीजिए आप। वन पॉइंट फॉरवर्ड, जब आप फाइलिंग करते तो आपको अपना द ब्यूटी ऑफ अवर जुडिशियल सिस्टम इज दैट जब आप फाइलिंग करते आपको एक दिन पहले मालूम होता कि आप कौन से कोर्ट में बैठने वाले हैं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जो अगर आपको एक 2 दिन मिल गए कि आप कौन से कोर्ट में जाके आर्गुमेंट करने वाले हैं, आपकी बेस्ट प्रिपरेशन ये रहेंगी कि आप वो कोर्ट में जाके बैठिए, वो जज साहब क्या पूछ रहे हैं, आपको आपके केस के रिलेटेड 1-2 केसेस आएंगे कैसा, क्योंकि तो आज मैं केस में जाके बैठा था, मेरा नंबर 23 था, लेकिन 2021 मेरे सिमिलर केसेस थे। जियो नंबर 58 ऑफ तेलंगाना, एक बार रिसर्च करिए, एंक्रोचमेंट का, जवाहर नगर, द लैंड वाज गिवन टू द फ्रीडम फाइटर्स बट इट इज बीइंग एंक्रोच। लकीली उसके बाद नेक्स्ट केस मेरा था, देन आई गॉट ए पॉइंट कि भाई पहले आप ये पॉइंट उठाओ, दैट वाज फ्रेश इन माय माइंड। द द जज सेड कि भाई इट इज नॉट इन माय हैंड्स, the government is regularizing the encroached lands, it's their policy decision, I can't help, but I have full sympathy with you. Then I thought कि भाई ये तो जमीन की बात हो रही, एंड आवर कंटेंशन वाज कि भाई आप डिमार्केटिंग कराओ कि भाई एंक्रोचमेंट नहीं होना बोल के। आई कनेक्टेड द डॉट्स देयर कि भाई अगर वो माइंड उन्होंने खुद इस्तेमाल करे एंक्रोचर्स वर्ड, तो आपको जब का जब पॉइंट्स भी मिल जाते, जब का जब पॉइंट मिल जाता है, एंड यूज द वर्ड to this is a proactive step. We have filed the writ petition to prevent the future encroachments. So the encroachment was very fresh in his mind. He himself used that word. So that also went in the favor. तो आप वो कोर्ट में जाके बैठिए, आप उनका नेचर समझ सकते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू व्हाट यू कैन से, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, acclimatize you to the question। और वो स्टेज फियर निकल जाता, इधर ठहरूंगा, इधर ठहरूंगा, उधर ठहरूंगा, इधर ठहरूंगा बोल के, जहाँ आपको बोलना है वहाँ सीनियर एडवोकेट बैठे हुए रहते, जहाँ आपको खड़े ना है वहां से आपको खड़े के आर्गुमेंट करना है, टुडे आई फेस्ड इट। जहाँ माइक है वहाँ सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट। जहाँ अनऑफिशियल रेस्पोंडेंट्स है वहां ठहर के आर्ग्यूमेंट है। सो इट्स नॉट स्ट्रिक्ट रूल के उधर ही ठहरना है, बट आप लोग वो एक कहाँ ठहरना मालूम है, इफ यू आर नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन देयर, इट माइट अफेक्ट योर आर्ग्यूइंग एबिलिटीज। फिर आप इधर देख रहे उधर देख रहे, यू शुड मेक एन आई कॉन्टैक्ट। आई नेवर आज जो आर्ग्यूमेंट हुआ, आई मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट। सो one of the question which was asked by our participant, Mr. Shagufta, how to improve our confidence and English talk। देखिए, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, बट एक सजेशन मेरा ये है कि जब तक आप बात नहीं करेंगे, माहौल नहीं मिलेगा, आप यू कैन नॉट इम्प्रूव। दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म कि भाई वी आर ट्राइंग टू गिव टू हेल्प एज मच एज आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली बिकॉज आप उसको यू कैन एम्यूलेट इट,
कि भाई कैसा बात कर रहे हो। आप सोच के बात करिए, जरूरी नहीं है कि फास्ट फास्ट बात करो, इंग्लिश 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 इंग्लिश। आप सोच के रेस्पॉन्ड करके 3 सेकंड लेके आप जवाब दीजिए। कॉन्फिडेंस कैसा इंप्रूव करना, फर्स्ट पॉइंट विच आई प्रैक्टिस अलॉट, कोई क्वेश्चन करे, डोंट रिएक्ट। 3 सेकंड के लिए सोचिए, 3 सेकंड के लिए सोचिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या जवाब देना है और कैसा देना है। वो 3 सेकंड 4 सेकंड में आप एनालाइज कर देते हो। जब आप जवाब देते तो आपको कॉन्फिडेंस आता, जब आपके पास एक प्लान थिंग रहती, देन इट विल कम टू अ कॉन्फिडेंस। हाँ ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट। नॉलेज रहना, देखिए द वेरी फर्स्ट सालन बनाना है तो पहले यू शुड हैव वेजिटेबल्स, रॉ मटेरियल्स, फिर उसके बाद में रेसिपी कुछ बनाओ। सो टू मेक द कॉन्फिडेंस, फर्स्ट थिंग have the knowledge of the law. Second, a good vocabulary. Don't go on grammar. No judge will say, no judge will see your grammar. आज ग्रामर क्लास भी हुई, आज शेक्सपियर तक चले गए आज कोर्ट में। शेक्सपियर से लेके शशि थरूर से लेके फिर कोर्ट में वापस आ गए, फिर अपने इंग्लिश में चाहते, और इंग्लिश यूके की इंग्लिश भी मालूम हो गई और यूएसए की इंग्लिश भी मालूम हो गई, फिर इंग्लिश में आ गया। तो डोंट स्ट्रेस ऑन ग्रामर पार्ट, इंप्रूव योर वोकैबुलरी, इंप्रूव योर लीगल नॉलेज एंड नेटवर्किंग करिए, आप पूछिए। और आज इत्तेफाक नहीं हुआ, मेरे बाजू जो बैठे हुए थे, ही आस्क्ड मी द सेम थिंग। धरनी पोर्टल का क्वेश्चन पूछ, धरनी पोर्टल में अगर पासबुक बनाए तो कैंसिल कैसा कर सकते हैं, हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू कैंसिल इट, अगर वो अगर फेक है तो वही एक माहौल मिल जाता। एंड व्हेन यू आर आपके केस के क्वेश्चन चाहते हैं आप, तो धरनी पोर्टल में केस फाइल मेरे पास ही था, तो धरनी पोर्टल ओके कब से स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग आई मिस दैट पॉइंट। तो बाजू में बैठ के क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि भाई धरनी पोर्टल में जो पासबुक आती है अगर वो फेक है, क्या बोलते हैं उसको, फोर्ज सिग्नेचर करके ले लिए वो, तो क्या करना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अथॉरिटी, गिव अ रिप्रेजेंटेशन टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अप्रोच द अथॉरिटी। So this is one of the which I practice a lot for building my confidence. First, legal knowledge. Second, vocabulary. Third, the speaking skills. The speaking skills, please attend the seminars. Attend the seminars. Try to speak. Try to speak in front of your mirror. कॉन्फिडेंस बढ़ता धीरे धीरे। इट्स नॉट जो 10 मिनट का जो आर्ग्यूमेंट था, इट टुक मी 10 years टू प्रेजेंट इट परफेक्टली। वो दिखता 10 मिनट, बट उसको 10 साल लगे। आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2013 इन दिसंबर इटसेल्फ एंड इट्स 2023। तो 10 साल का जो तपस्या बोलते, आज 10 मिनट में रिजल्ट ला। आर्ग्यूमेंट्स इन इंग्लिश, नो, इन हाई कोर्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश ओनली। इट इज अ जज लिबर्टी, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट बी प्रिपेयर इन इंग्लिश ओनली so that you get a favor. It is written in the constitution, the official language will be English as well as the local, if the judge gives you liberty, otherwise no. Lower courts में आप local language इस्तेमाल करते हो, but in high court and supreme court it will be only in English. If the judge gives liberty, it's a different matter. वो उसी पॉइंट से रिलेटेड एक जहन में बात आ रही थी कि जो आर्मी की ट्रेनिंग होती, तो उसमें कहावत मशहूर है कि ट्रेनिंग के दौरान आप जितना पसीना बहाएंगे, जंग के दौरान उतना कम खून बहाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहाएंगे उतना जंग के दौरान उतना ही कम खून बहेगा। जब नॉन प्रैक्टिस नहीं करते, देखेंगे कोर्ट में जाके देख लेंगे, लेकिन जब जो डर होता ना, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट फियर। रिग्रेट नहीं है, यू शुड पर्सन शुड नेवर रिग्रेट इन लाइफ। ले रहे तो पूरा करो या तो मत करो। एडवोकेसी इज 24/7, मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन, I came into the litigation after 2 years of LLM, नहीं हो रहा था, I was stress हो जा रहा हूँ, तो I decided कि मैं पहले LLM खत्म करेंगे, then I will come 24/7 advocacy, litigation part, and
इट इज द मोस्ट satisfying थिंग लिटिगेशन। आप ऑफिस में बैठ के कितना भी आप क्लासेस ले लो, कितना भी आप टीम मीटिंग्स कर लो, लेकिन जब आप कोर्ट में जाके लिटिगेशन करके आप अपना केस क्लाइंट के लिए जिताते, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। वैसा एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं होगा। लीगल लैंग्वेज के बारे में सिस्टर का सवाल है कि ग्रीक एंड लैटिन वगैरह सीखना तो नहीं पड़ेगा, वो ग्रीक एंड लैटिन पार्ट मैं ऐड करके बोल रहा हूँ, समझिए। ये द डिफिकल्ट वर्ड मैंडामस हो गया, सर्टोरियरी हो गया, या सर्शियरी बोलते बात लोग। फिर वो अगर इफ यू कोटेशन से लैटिन, जर्मन सॉरी ग्रीक। with the leave with the leave of this host and those and all the participants, I would just say कि भाई ये लैटिन वर्ड्स आए कैसा, कि भाई पहले इंग्लिश, ये जो लीगल सिस्टम आया इट केम इन इंग्लिश, इंग्लैंड में आया, बट उससे पहले ग्रीक और रोम में स्टार्ट हो गया था लीगल सिस्टम। सो इंग्लिश पीपल वांटेड टू ब्रिंग दैट सॉर्ट ऑफ लीगल सिस्टम। तो वो लोग क्या करे, ग्रीक लैटिन में जाके उन लोगों से इधर इधर आके पढ़ाओ बोले। तो वैसे जो वर्ड्स है वो इधर लीगल सिस्टम तो बना दिए, लेकिन थोड़े वर्ड्स वैसे ही रख दिए, जैसा मैंडामस है, हेबियस कॉर्पस है, स्टेरी डिसाइसिस है, ये जो दिखते पेक्यूलियर वर्ड्स। और इंग्लिश इन द 11th and 12th century became started voyages, 17th century to 19th century, 20th century they colonized almost the whole world। वैसा ग्रीक लैटिन रोम के वर्ड्स इंग्लैंड में आए, इंग्लैंड से पूरी दुनिया में फैल गए। तो इट इज वन ऑफ द कंपेलिंग रीजन आपको पढ़ना ही पड़ता। लीगल लैंग्वेज आपको देखिए, आप इफ यू आर एन एडवोकेट यू कांट गिव एन एक्सक्यूज दैट लीगल लैंग्वेज में थोड़ा मुश्किल होती है, आपको सीखना है, वही आपकी रोजी रोटी है, दैट इज योर लाइवलीहुड। अगर आप डॉक्टर करने गए ही विल यूज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इफ यू आर गोइंग टू एन इंजीनियर यू विल यूज द वर्ड कॉलम इंस्टेड ऑफ पिलर। सो आप जो फील्ड में है उसकी लैंग्वेज तो सीखना ही सीखना है। डिफिकल्ट है, हाँ डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, एंड दैट विल गिव यू द रिच डिविडेंड्स, दैट इज श्योर। I would like to add to the answer part of, जैसा कि MBBS ज्वाइन करे कोई, तो डिसेक्शन हॉल में गए तो कैडावर्स रखे हुए रहते, और फिर नर्व्स, मसल्स, बोन्स आइडेंटिफाई करना रहता। अब जैसा ये इतना हाथ है, इसके अंदर 20 मसल्स है, ये हाइपोथीनार बोलते हैं इसको, थीनार मसल्स, लंबराइकल्स। फिर फोर आर्म के अंदर 20 मसल्स रहते, तो 20 मसल्स की नर्व सप्लाई रहती है, उसकी ब्लड सप्लाई रहती है। फिर ईच बोन को भी पढ़ना है, उसमें भी टर्म्स ग्रीक एंड लैटिन के हैं। कोई भी फील्ड में आप डेप्थ में चले गए तो ग्रीक और लैटिन के थोड़े थोड़े अल्फाज आप फेस करना ही पड़ता। अब जैसा ये गर्दन के पास का एक सिंपल सा मसल है, कान के पीछे से स्टर्नम तक आ रहा, उसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। पूरे ग्रीक और लैटिन वर्ड से स्टर्नम से मसल निकल रहा, क्लैविकल से निकल रहा, मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन तक जा रहा। तो जनरल इंग्लिश के यूजेज के वर्ड से हटके ग्रीक और लैटिन वर्ड्स रहने से जो उसके आगे और पीछे आप इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं उसमें वो मिक्स नहीं होता, इट विल स्टैंड लाइक अ सेपरेट एंटिटी। वो भी एक बेनिफिट है। तो अब जैसे मेडिसिन पढ़ रहे हैं आप, तो पढ़ने के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यू डोंट नीड टू नो ऑल द 300 बोन्स इन द बॉडी, ऑल द 6000 मसल्स। आंख के अंदर भी इंटरनल ऑर्बिकुलर मसल्स रहते हैं, उसके नाम नहीं मालूम है मेरे को, तो नर्व्स नहीं मालूम है, एनाटॉमी नहीं मालूम है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यू हैव कम हियर टू स्टडी। आपके उस्तादों का काम है कि आप मेडिसिन कंप्लीट करके डॉक्टर बन के निकले तक ये टर्म से वाकिफ हो जाना, ये सिस्टम से वाकिफ हो जाना। उसी तरीके से आप जब LLB ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके उस्तादों का काम है कि आपको वकालत और उसकी नॉलेज और उसके वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी सिखा के बाहर छोड़ें। हाँ, अगर आपका LLB कंप्लीटेड है और आप अभी सोच रहे कि ये ग्रीक एंड लैटिन टर्म से मेरे को डर हो रहा, तो देन इट्स एन इशू, इट नीड्स टू बी सॉल्व्ड इन अ स्पेशल वे। बट आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं,
एंड आपको ग्रीक एंड लैटिन टर्म से डर हो रहा तो नो प्रॉब्लम, अभी आपके पास 3 साल 5 साल है, आपके उस्ताद आपको वो करेंगे। तो कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट अगर, अभी भी लेट जी जी अभी भी लेट नहीं हुई। आप लोग ये वर्ड्स यूज करिए, डेली लैंग्वेज में यूज करिए। टेरी डिसाइसिस, मैंडामस, हेबियस कॉर्पस, सर्शियोररी, को वारंटो, आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन। अभी तो और पेक्युलर वर्ड आते। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, वो लैटिन वर्ड में रहता वो। So this was one of the interactive program. We would end this within 30 seconds. Over to Advocate Musa Hashmi. Sir, thank you very much. thank you to all the brothers who attended it, and also Muhammad Abdul Muhib advocate, who shared his valuable experiences about today's arguments and also guided the law students. Okay then, bye. Thank you. Jazakallah khair.